ਟਾਈਮਸ ਯੂਐਸਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਵੇਗਾ ਰੂਸ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਮਦਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਵੇਗਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਲਾਨ B ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। Сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО? Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого, не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії, ми не боїмось говорити з Росією, ми не боїмось говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО, але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵੱਲ ਘਸੀਟਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੈਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ
ਰੂਸ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਮਦਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਮੀ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। नमस्कार बच्चे। Happy that all of us could finally get into the school. It's been a very anxious day for you, and I can tell you maybe many more times for me, because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. And then, as you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities could see the numbers. And that led to the negotiation which helped us keep the school. The only bunch of students. You know there are more than 15,000-16,000 students. ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। आयोजित आज के सेमिनार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, सेना के एयर चीफ मार्शल चौधरी और आर्मी और नेवी के सीनियर ऑफिसर्स, सेक्रेटरी डीआरडीओ, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए इंडस्ट्री कैप्टन्स जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है, यंग और डायनेमिक स्टार्टअप इनोवेटर्स और अन्य सभी गणमान्य मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। आज का यह वेबिनार आह्वान है कि देश रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके और मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का मार्ग और प्रशस्त हो सके। सर, आज देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नए आयाम जोड़ रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण, 7 नई रक्षा कंपनियों का गठन जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के साथ 2022-23 के एनुअल बजट के अंतर्गत कैपिटल आउटले में अभूतपूर्व बढ़ोतरी ऐसे सशक्त कदम हैं जो सैन्य सुधारों तथा आत्मनिर्भरता के राष्ट्र संकल्प को दर्शाते हैं। सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनके परिणाम भी आने लग गए हैं। ओएफबी कॉर्पोरेटाइजेशन, जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 2021 में 7 नई डीपीएसयूज का गठन हुआ था, मात्र 6 महीनों में उनके परफॉर्मेंस में बहुत सुधार हुआ है। मुझे यह भी कहते हुए हर्ष है कि इनमें से एक ने तो पुणे स्थित म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने अभी 2 दिन पहले एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर को साइन किया है जो पहले असंभव सा दिखता था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारी कोशिश है कि इस वर्ष हम रिकॉर्ड पहले से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का टर्नओवर हासिल करें। सर, इस वर्ष के बजट में डिफेंस आर&डी के रिफॉर्म के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इंडस्ट्री लेड डिजाइन और डेवलपमेंट एफर्ट्स को लेकर डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत एक्साइटमेंट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर डीआरडीओ, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, सर्विसेज, डिफेंस आर&डी के नए आयाम को पहुंचने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम को संबोधित करके हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज के वेबिनार की थीम आत्मनिर्भर इन डिफेंस, कॉल टू एक्शन। देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों, सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है
वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। साथियों, इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपीस, करीब 54,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजिंग में है। बहुत जल्द तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। ये दिखाता है कि हम देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। मैं देश की सेनाओं की भी सराहना करूंगा कि वो भी डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। आज हमारी फौज के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका गर्व भी नई ऊंचाई पर पहुंचता है। और इसमें हमें सीमा पर डटे जवानों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। मुझे याद है जब मैं सत्ता के किसी गलियारे में नहीं था, मेरी पार्टी का काम करता था, पंजाब मेरा कार्यक्षेत्र था, तो एक बार वाघा बॉर्डर पर जवानों से गपशप करने का मौका मिल गया। वहां जो जवान तैनात रहते थे उन्होंने चर्चा के दौरान मेरे सामने एक बात कही थी और वो बात मेरे मन को छू गई थी। उन्होंने कहा था कि वाघा बॉर्डर पर भारत का जो गेट है वो हमारे दुश्मन के गेट से थोड़ा छोटा है, हमारा गेट भी बड़ा होना चाहिए, हमारा झंडा उससे ऊंचा होना चाहिए। ये हमारे जवान की भावना होती है। हमारा देश का सैनिक इस भावना के साथ सीमा पर डटा रहता है। भारत में बनी चीजों को लेकर उसके मन में एक अलग स्वाभिमान होता है। इसलिए
हमारे जो रक्षा उपकरण होते हैं उनके लिए हमें अपने सैनिकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर होंगे। साथियों, पहले के जमाने में युद्ध अलग अलग तरीके से होते थे, आज अलग तरीके से होते हैं। पहले युद्ध के साजो सामान में परिवर्तन आने में दशकों लग जाते थे, लेकिन आज युद्ध के हथियारों में देखते ही देखते बदलाव आ जाता है। आज जो शस्त्र है उन्हें आउट ऑफ डेट होने में समय नहीं लगता है। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित हथियार है वो तो और भी जल्दी आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमें उतने ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। जैसे अब साइबर सिक्योरिटी की बात ले लें, अब लड़ाई का वो एक हथियार बन गया है और वो कोई सिर्फ डिजिटल एक्टिविटी के लिए सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। साथियों, ये भी आप भली भांति जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमेशा किस तरह का कंपटीशन रहा है। पहले के समय में बाहर की कंपनियों से जो सामान खरीदा जाता था उसमें अक्सर भांति भांति के आरोप लगते थे। मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात सही है कि हर खरीदी से विवाद पैदा होता था। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के बीच जो कंपटीशन होता है उसके कारण दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा दिखाने का अभियान निरंतर चलता रहता है और उसके कारण कंफ्यूजन भी पैदा होता है, आशंका भी पैदा होती है और भ्रष्टाचार के दरवाजे भी खुल जाते हैं। कौन सा हथियार अच्छा है, कौन सा हथियार खराब है, कौन सा हथियार हमें उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है, इसे लेकर भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, बहुत योजनापूर्वक किया जाता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड की लड़ाई का वो हिस्सा होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमें ऐसी अनेक समस्याओं का भी समाधान मिलता है। फ्रेंड्स, जब पूरी निष्ठा के साथ संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या परिणाम आते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। हमारे रक्षा सचिव ने अभी इसका बड़ा वर्णन भी किया। गत वर्ष के पहले हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया था। आज ये तेजी से बिजनेस का विस्तार कर रही है, नए मार्केट में पहुंच रही है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी ले रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना वृद्धि की है। आज हम 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और सर्विसेज दे रहे हैं। मेक इन इंडिया को सरकार के प्रोत्साहन का परिणाम है कि पिछले 7 सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 350 से भी अधिक नए इंडस्ट्रियल लाइसेंस इश्यू किए जा चुके हैं, जबकि 2001 से 2014 के 14 वर्षों में सिर्फ 200 लाइसेंस जारी हुए थे। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर भी डीआरडीओ
और डिफेंस प्लस, डिफेंस पीएसयूज इसकी बराबरी पर आए। इसलिए डिफेंस R&D बजट का 25% इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए रखा गया है। बजट में स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल की व्यवस्था भी की गई है। ये प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को सिर्फ एक वेंडर या सप्लायर से आगे एक पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। हमने स्पेस और ड्रोन सेक्टर्स में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स और इनका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेशन देश के डिफेंस सेक्टर को जरूरी ताकत देंगे। साथियों, ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था का ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, प्रैग्मेटिक और निष्पक्ष होना एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम समस्याओं को दूर करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे देश में जरूरी स्किल सेट के निर्माण में भी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी से देश की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए नए रास्ते बनेंगे। मैं चाहता हूं, आज सभी स्टेक होल्डर से हम सुनना चाहते हैं। हम आप लोगों को लंबे भाषण देना नहीं चाहते हैं। ये आज का दिवस आपके लिए है। आप प्रैक्टिकल चीजें लेकर के आइए, बताइए। अब बजट निर्धारित हो चुका है। 1 अप्रैल से नया बजट लागू होने वाला है। हमारे पास तैयारी के लिए ये पूरा महीना है। हम इतना तेजी से काम करें कि 1 अप्रैल से ही चीजें जमीन पर उतरना शुरू हो जाए। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसलिए है। हमने बजट को भी 1 महीना प्रीपोन करने की पद्धति डेवलप की है। इसके पीछे भी इरादा यही है कि हमें एक्चुअली बजट लागू होने से पहले सभी डिपार्टमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तैयारियां करने का पूरा अवसर मिले, ताकि हमारा समय बर्बाद न हो। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये देशभक्ति का काम है, ये देश सेवा का काम है। हम आइए, मुनाफा कब होगा, कितना होगा, वो बाद में सोचिए। पहले देश को ताकतवर हम कैसे बनाएं, इस पर सोचिए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं और मुझे खुशी है कि आज हमारी सेना के हमारे तीनों अंग बड़े उमंग और उत्साह के साथ इन कामों में पूरी इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब ये मौका हमारे प्राइवेट पार्टी के लोगों ने खोना नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार आपको निमंत्रण देता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।